بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، روز عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی اہل بیت کو دوسرے بازماندگان کے ساتھ اسیر کیا گیا۔ اسیران کربلا کے اس قافلے کو کوفہ میں دربار ابن یزید اور کوفہ و شام کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار تک لے جایا گیا۔ جب شام کے سرکردگان جنہیں یزید نے جنگ میں اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے دعوت دی تھی یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی محفل میں لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند مکہ و مینا، اے فرزند فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء العالمین، اور اے فرزند بنت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم، حضرت زینب کے اس فریاد کے ساتھ یزید کے دربار میں بھی موجود تمام لوگوں نے رونا شروع کیا، اور اس موقع پر یزید بھی خاموش بیٹھا تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ امام حسین کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ابو برزہ اسلمی جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، آیا اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ کے نور نظر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا جو حسین اور اس کے بھائی حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرما رہے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والے کو ہلاک کرے اور اس پر لعنت بھیجے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے جو بہت بری جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ایک شعر گنگنایا۔ اس کا وہ شعر پڑھنا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت زینب نے اپنے خطبے کو خدا کی حمد و ثنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور بدکاروں کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد ظالموں کو مہلت دینے کی الہی سنت سے مربوط قرآنی آیت سے استناد کرتے ہوئے امام حسین کے اہل بیت پر روا رکھنے والے ظلم و ستم اور انہیں شہروں اور بازاروں میں پھرائے جانے پر یزید کی سرزنش کی، اور اس برے فعل کی علت کو یزید کا وہ کینہ قرار دیا جو جنگ بدر سے یزید کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ آگے چل کر آپ نے یزید کے برے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں ظلم و ستم روا رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار کیا، اور آخر میں وحی اور نبوت کو اہل بیت کے ساتھ مختص کرتے ہوئے اہل بیت کے تذکرے کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی یزید کی کوشش کو بے ثمر قرار دے دیا۔ فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت علیہم السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اطراء رہا ہے، اور زمامداری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد،
क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सरबरहना दर बदर फिरा लौटा रहा है। तूने मुखद्दरात अस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हुजूम में ले आए और लोग रसूल ज़ादियों के खुले सर देखकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं और दूर नज़दीक के रहने वाले सब लोग इनकी तरफ नजरें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ व कमीने की निगाहें इन पाक बीवियों के नंगे सरों पर जमी हैं। आज रसूल ज़ादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मुय्यन व मददगार कोई नहीं है। इस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिसकी माँ ने पाकीज़ा लोगों के जिगर को चबाया हो, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसने शहीदों का खून पी रखा हो। वो शख्स किस तरह हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मजालिम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है। ए यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फ़ख्र व मुबाहात करता हुआ कह रहा है कि आज अगर मेरे अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते और तुझे दुआएं देते हुए कहते कि ए यजीद तेरे हाथ चल न हो। ए यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तू जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्न अली के दंदान मुबारक पर छड़ी मारकर इनकी बेअदबी कर रहा है। ए यजीद, तू क्यों खुश न हो और फ़ख्र मुबाहात के कसीदे न पढ़े, क्योंकि तूने अपने जुल्म व इस्तब्दाद के जरिए फर्जंद रसूल खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदानी सितारों का खून बहाकर हमारे दिलों के ज़ख्मों को गहरा कर दिया है और शजरा तय्यबा की जड़ें काटने के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के उन जवानों को तहे किया है जिनकी अज़मत व किरदार के दरख्शंदा सितारे ज़मीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल को कत्ल करके अपने बदनिहाद असलाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मुनहमिक है। तू समझता है कि वो तेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जल्दी न कर, अनकरीब तू भी अपने उन काफिर बुजुर्गों के साथ जा मिलेगा और उस वक्त अपनी गुफ्तार और किरदार पर पशेमान होकर ये आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ चल हो जाते और मेरी जुबान बोलने से आजिज होती और मैंने जो कुछ किया और कहा इससे बाज रहता। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमान की तरफ मुँह करके बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए खुदा, तू ही इन पर अपना गजब नाजिल फरमा, जिसने हमारे अजीजों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहे तेग कर दिया। ए यजीद, खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरिम की सूरत में लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस गिनाउने जुर्म की बाज पुरस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को क्यों दरबदर फिराया, नेज़ रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ए यजीद, याद रख कि खुदा अले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर और उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें अमन सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोजी पा रहे हैं। ए यजीद, याद रख कि तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं इस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्राइल अमीन आले रसूल की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदल इंसाफ के जरिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है। अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म व इस्तब्दाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमिराना सल्तनत की बसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। इन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसके साथ नातवानी का शिकार हैं। इसके बाद फरमाया, ए यजीद, ये गर्दश अय्याम और हवादिस रोजगार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ा है और मैं तुझ जैसे जालिम सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों न बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और
आजमाइश समझते हुए सब्र इस्तकामत इख्तियार करूंगी, और तेरी बद कलामी और बदसलूकी मेरे अज़्म इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ए यजीद, आज हमारी आंखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहे तेग कर डाला है, और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दहन और हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं, और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जंगल के निज दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ए यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझ रहा है, तो याद रख कि जब कयामत के दिन अपनी बदकिरदारी की सजा पाएगा तो इसका बर्दाश्त करना तेरे बस में नहीं होगा तेरे बस में इसका बर्दाश्त करना। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं, और हर हाल ही में उसी की इनायात और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ए यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है, और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महव कर सकता है। तू ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शान मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। ये तेरे पास उस दिन की हसरत पेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, जब मुनादी निदा करेगा कि जालिमों से तमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। हम खुदा कुदूस की बारगाह में सपास गुजार हैं कि हमारे खानदान के पहले फर्द हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत व मग़फ़िरत से बहरामंद फरमाया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत व रहमत की नेमतों से नवाजा। हम बारगाह इज़्ज़ी में दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब व अज्र में इजाफ़ा और तकमील फरमाए, और हम बाकी सब अफराद को अपनी इनायतों से नवाजे। बेशक खुदा ही रहम व रहमत करने वाला और हकीकी मानों में मेहरबान है। खुदा की इनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि इससे बेहतर कोई सहारा नहीं। अल्लाह 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 तमाम अहले बैते अत्हार कब्रों को मुनव्वर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।